कोई को प्रूफ दिखा दे सरकार कि किसी ने हमें समझाया हो, कोशिश की हो, रिक्वेस्ट की हो कि आप यहाँ से यू टर्न लेकर वापस आ जाए, कि आपका रूट से आप आगे आ गए हैं। वहाँ पे लाठी चार्ज और असरू गैस लेके हमारा इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे कुछ लैंडमार्क लगाती, उनको बताती, कुछ स्टिकर लगाती, बोर्ड लगाते कि भाई आपका रूट यहाँ तक है, आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। लेकिन सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जो आदमी बठिंडा से आया हुआ है, जो जालंधर से आया हुआ है, जो हरियाणा सिरसा से आया हुआ है, या बुलंदशहर से आया हुआ है, या भरतपुर से आया हुआ है राजस्थान से, उन्हें क्या पता कहाँ पे ITO है, कहाँ पे करंट प्लेस है, कहाँ पे लाल किला है। आप जानते हैं अमित शाह के वहाँ तो कैबिनेट का मंत्री भी नहीं जा सकता, वे साथ हाथ में हाथ डाले सोफे पे बैठे हुए हैं, और वह साथ फोटो है आपके प्रधानमंत्री महोदय के साथ। उसको कौन नहीं कह सकता कि ये खास आदमी है आपके जो है प्रधानमंत्री और आपके जो है ये गृह मंत्री का। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਤੇ लहराते रहेंगे। कि अन्याय को न्याय के सामने से, अंधेरे को उजाले के सामने से हटना पड़ेगा। पर्वत कितना भी विशाल का क्यों ना हो, नदी के बहाव से कटना पड़ेगा। जो कभी बच गया था तलवार से, उसे फूलों से कटना पड़ेगा। ये पब्लिक की एक आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है। इसको सरकार एक छोटे मोटे हथकंडों से दबा नहीं सकती। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਝੰਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਲਦਾ ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਰਵੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ 26 ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾ ਵੜੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? मैं DP दहिया, बालागढ़ हरियाणा से। मैं दिल्ली से प्रोफेसर रिटायर, और 2-3 मेरे NGO हैं DDF के नाम से, और 60+ यंग एसोसिएशन दोनों का प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें काफ़ी 200-250 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। हमारे संगठन बहुत ही किसी आंदोलन को तोल के उसका अंदाज़ा लगा के उसमें शामिल होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ये आंदोलन चले हुए पंजाब में तो 2-2.5 महीने पहले चले, लेकिन हमारी आंखों के सामने जब से हम इसमें शामिल हुए हैं, अब 62वां 63वां दिन आज यहाँ पे हो गया है। लेकिन जिस बात का डर था, सरकार उस चाल में कामयाब हुई। जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं या जत्थेदार जो लोग हैं, जो एक्शन कमेटी के 35 आदमी जो सरकार से बात करने के लिए किसानों ने सर्वसम्मति से चुनाव आज इन लोगों को,
जो बहुत ही समझदारी से, निडरता से, निष्पक्षता से और बड़ी समझ जो है इस बात को आगे बढ़ा रहे थे और आंदोलन काफ़ी आगे तक चला गया था। लेकिन सरकार ये सोच नहीं पा रही थी कि इतना कामयाब लाखों की संख्या में किसान, जिसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। और हरियाणा प्रदेश के लगभग नौजवान जो यहाँ साथ लगते हुए ज़िले, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा हरियाणा प्रदेश, इधर से आपका उत्तर प्रदेश, इधर से आपका राजस्थान, उन सभी ने चारों सीमाओं पे, चारों बॉर्डर पे भी, आपका सिंध बॉर्डर है जहाँ खड़े, आपका ये टिकरी बॉर्डर है, चाहे आपका इधर साझा बॉर्डर है। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। ओके, क्लियर है। चलो मैं इस इशू पे आता हूँ। तो सरकार जो कुछ चाहती थी कि उसने 26 तारीख को हमारे मार्च की परमिशन दी, उस बात को हमने सेलिब्रेट किया कि हम जो कुछ चाहते हैं कि हम पूरे इंटरनेशनल मीडिया को दिखाना चाहते हैं कि लगभग 1.5 और 2 लाख के बीच में ट्रैक्टर तिरंगा लगा के और भारत माता की जय बोलते हुए इस देश का मेरा किसान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सभी लोग, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों के किसान भी पूरे दिल्ली में एक परिक्रमा करेंगे। शांति प्रिय तरीके से जिस रूट से हम शुरू करेंगे वहीं पे वापस आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत ये परमिशन जो हमें 8-10 दिन पहले मिल जानी चाहिए थी, ये हमें 24 और 25 तारीख को दी। वो भी वर्बल और लिखित में हमें जो परमिशन जो मिली, जो रूट जो हमें अलॉट किए गए, वो 25 तारीख को मिले हैं। तो इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना डिले करने का कारण क्या है। क्योंकि जो आदमी बठिंडा से आया हुआ है, जो जालंधर से आया हुआ है, जो हरियाणा सिरसा से आया हुआ है, या बुलंदशहर से आया हुआ है, या भरतपुर से आया हुआ है राजस्थान से, उन्हें क्या पता कहाँ पे ITO है, कहाँ पे करंट प्लेस है, कहाँ पे लाल किला है और कहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है। उन्हें तो पीछे पीछे चलना था। इसके लिए चाहिए ये था कि 2, 4, 5 दिन पहले किसान नेताओं से बात करते, पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करके इन लोगों को वहाँ तक ले जाती, वहाँ पे कुछ लैंडमार्क लगाती, उनको बताती, कुछ स्टिकर लगाती, बोर्ड लगाते कि भाई आपका रूट यहाँ तक है, आपको यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। लेकिन सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत ऐसा कुछ नहीं किया। इसके बाद जब 26 तारीख को हमारा मार्च शुरू हुआ, बहुत शांतिप्रिय तरीके से ये ठीक हुआ था। लेकिन ये सरकार के प्लांटेड लोग, क्योंकि 9-10 जगह से दिल्ली में एंट्री हुई है, सभी ठीक ठाक जाके रूट पे वापस आए हैं जो रूट उनको अलॉट किया गया था, कोई शरारत नहीं थी। लेकिन मैं बता दूं, मैं खुद एक काफिले के साथ था। टिकरी बॉर्डर से तय सीमा पर हम यहाँ से चले, बहुत शांतिप्रिय तरीके से, बाकायदा वॉलंटियर दोनों साइड में खड़े हुए थे, सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, फूल बरसाए जा रहे थे। और जब ये एक एक ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से जो पल्ली तरफ जाने लग रहा था, इसके बाद तरीका ये बनता था कि क्योंकि हमारा रूट यहाँ से नजफगढ़ था, उसके बाद डासा बॉर्डर था, बादली KMP होते हुए घूम के हम आसोदा से वापस टिकरी बॉर्डर पे यहाँ पे आ जाते, टिकरी बॉर्डर हमारे इस स्टेशन पे। लेकिन क्योंकि नांगलोई से पहले एक फ्लाईओवर चढ़ता है, आम आदमी किसी को नहीं पता है, जो रोज़ाना यहाँ दिल्ली में नहीं आता है, अगर कोई भी ट्रैक्टर वाला फ्लाईओवर पर चढ़ेगा तो वो सीधा जाके वो हमारा जो रूट है, जो हमें राइट को जाना था, वो 2 किलोमीटर आगे जाके फ्लाईओवर उतारेगा उसको। और सामने ही सूरजमल स्टेडियम है, पीरागड्डी है, वहाँ पे पुलिस हमारा इंतजार कर रही थी कि ये लोग यहाँ पे आए। किसी ने नहीं कही, कहीं कोई वीडियो दिखा दे हमें, कहीं को प्रूफ दिखा दे सरकार कि किसी ने हमें समझाया हो, कोशिश की हो, रिक्वेस्ट की हो कि आप यहाँ से यू टर्न लेकर वापस आ जाए, कि आपका रूट से आप आगे आ गए हैं। वहाँ पे लाठी चार्ज और अश्रु गैस लेके हमारा इंतजार कर रहे थे। तरीका ये बनता था उस रूट को रोका जाए और हमें लेफ़्ट की तरफ डाइवर्ट करके फ्लाईओवर के नीचे से हम राइट को जाते और नजफगढ़ हम पहुँचते। लेकिन जानबूझ के शरारत की गई। इसी प्रकार की शरारत मेरी राकेश टिकैत से बात भी हुई है। उनका बेटा उस काफिले के जो गाजीपुर से चले हैं, आगे के चला हुआ था, उनका रूट पड़ता था कि वे अक्षरधाम मंदिर से राइट को होके और वो सीधे जो गाजीपुर और घूम के वापस अपने रूट पे आते। लेकिन उस रोड को उन्होंने पूरी तरह से बंद किया हुआ था, पुलिस सामने खड़ी हुई थी और एक सेफ पैसेज दिया हुआ था, इसी तरह से इसे नांगलोई का दिया हुआ है। वहाँ पे सारा फ्लाईओवर पर चलती पूरी दिल्ली वो है, वहाँ पे सारा ट्रैफिक वहाँ मुड़ने की बजाय पुलिस ने जानबूझ के उसको फ्लाईओवर पर चढ़ा दिया। और वो फ्लाईओवर 3-4 किलोमीटर का है और वो फ्लाईओवर सीधा जाके ITO के चौक पे उतरता है।
तो ये लोग जो अपने बेचारे जो किसान जिन्होंने इस रूट का मालूम था, कुछ तो उसका पहली बार ही दिल्ली में आए हों, वे जाके उस फ्लाई ओवर ने उन लोगों को ट्रैक्टर समेत वहाँ पे जाके छोड़ दिया। किसी ने नहीं कोशिश की आप वापस आएँ। वहाँ पे उनका फिर उसी प्रकार से जो खैर मुकदम हुआ है, जो स्वागत हुआ है, वही आंसू गैसी गोली और लाठियों से हुआ है। इसमें मैं नहीं मानता कि बेचारा भोला भाला किसान जो अपने एक मोटो के लेके चला हुआ था, 60 दिन पेशेंस से बैठा हुआ था, अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंच गया था, लेकिन इसको ख़राब करने पे सरकार जो आमादा थी। इसके बाद जो चाहते थे ये हरियाणा और पंजाब की फिर बात आई। कुछ लोगों ने इस रूमर को फैलाया, स्टेटमेंट को भी तोड़ मरोड़ के दिया गया है, क्योंकि मेच्योर हैं सारे के सारे लोग, वो भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि दोनों की सपोर्ट से आंदोलन चला हुआ था। पंजाब का लोग जालंधर से आया हुआ है, सारे संसाधन नहीं हो सकते उसके पास, तो यहाँ से लोकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। और जितनी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तन से, मन से, धन से, हर तरह से, क्योंकि हम भी किसान हैं। ये कानून जितने फ़ायदे नुकसान इनके लिए हैं, वो पूरे देश के किसानों के लिए है। अगर बारिश होती है तो फ़ायदा सबको होता है, अगर सूखा पड़ता है तो नुकसान सभी को होता है। इस बात को सभी समझते हैं। इस एक आइडिया को लेकर इस आंदोलन में हम सभी दिल और रात जो लगे हुए थे ईमानदारी से, इसको बिगाड़ने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा निवेदन है आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस षड्यंत्रों को समझने की कोशिश करें कि एक अगर शरारती तत्व एक षड्यंत्र के तहत एक सरकार के कठपुतली, क्योंकि वीडियो के माध्यम से क्लियर भी हो गया है, जो आज पंजाब के गुरदासपुर के MP का छोटा भाई है, वीडियो है। आप जानते हैं अमित शाह के वहाँ तो कैबिनेट का मंत्री भी नहीं जा सकता, उसके साथ हाथ में हाथ डाले सोफे पे बैठे हुए हैं, और वो साथ फोटो है आपके प्रधानमंत्री महोदय के साथ। उसको कौन नहीं कह सकता कि ये खास आदमी है आपके जो है प्रधानमंत्री और आपके जो है ये गृह मंत्री का। उन लोगों ने उस आदमी को सबसे आगे किया, उसने शरारत की। मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, उसका मतलब पंजाब नहीं हो गया है, उसका मतलब सरदार से भी नहीं हो गए हैं, सभी लोग देशभक्त हैं। उस एक आदमी के कारण मन में किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें। सभी लोग, सभी का भाईचारा उसी तरह से आज भी है, बना रहेगा। और मैं ये कहता हूँ कि इस षड्यंत्रों को फैल करने के लिए आप और जोर से और ताकत से और ईमानदारी से और समझदारी से और संसाधनों को जुटा के और अपना स्टेमिना डेवलप करें और आंदोलन को और आगे ले जाएं। लड़ाई अभी हम बिल्कुल जीतने के करीब हैं, हौसला ना छोड़े। और ये ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। हाँ जी, हिंदू है, हरियाणे का है, वो करता है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਕੂਲ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਝੂਲਣ ਦਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਨਾ ਆਏ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਗਏ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅੰਤਰ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਕਹ ਲਓ ਉਹ 10-20 ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 10-20 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਲਾ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਤਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ हरियाणा नेड़े आए। देखिए, ये आंदोलन जिस इश्यूज़ को लेकर स्टार्ट किया गया था, मैं समझता हूँ कि अब आज जो डिबेट का इशू क्या है, वे कानून की बात, वो जो आपके 3 काले कानून वापस लेना, MSP पे कानून बनाना, वो मैं कहता हूँ सेकेंडरी हो गए हैं। अब इस सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हरियाणा और पंजाब का भाईचारा, ये मेंटेन रहना चाहिए, ये और सुदृढ़ होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा भाईचारा बना रहेगा तो हमारी ताकत दोगुनी और चारगुनी हो जाएगी, और जब ताकत जब बढ़ जाएगी, जब हमारी एकता बढ़ेगी, तो उसके बाद कोई भी सरकार क्यों ना हो उसकी हिम्मत नहीं होती। जब एक जन आंदोलन बन जाता है कि उनकी बातों को ना माने, तो हमने सभी बुद्धिजीवी लोगों ने और सभी समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों ने ये कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के इस तरह के दुष्प्रचार में ना आए, बल्कि ये जो सरकार एक रूमर फैला रही है, जिसको थोड़ा बहुत फैलाने में कामयाबी हो गई, मैं कहूँगा, इसको कंडेम करे और आगे आए और इस भाईचारे को दोबारा फिर मेंटेन करे और इस आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर भाईचारा बना रहेगा तो इस तरह के नहीं कितने सारे भी आंदोलन आप जीत सकते हैं। तो अगर भाईचारा बिगड़ गया तो वो जो कीमत है जो हम चुकाएंगे, वही आंदोलन की कीमत कोई भी नहीं है। ये जो हम इश्यूज़ लेके चले हैं, तो ये हम भाईचारा बढ़ाने की जो बात है, इसके ऊपर हम ज़्यादा जो जोड़ देंगे। और आप लोगों के माध्यम से मीडिया भी थोड़ा हमें कोऑपरेट करे, क्योंकि कुछ आप ऐसे लोग ईमानदार हैं जो ठीक बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि मीडिया भी एक षड्यंत्र के तहत शुरू से लगी हुई है, उस दिन से लगे हुए हैं। ये तो सोशल मीडिया पे क्लिप आ गया, हमें पता लग गया है कौन झंडा फहराने वाला था, कौन इनको लीड करने वाला था, किसी क्या स्टेटमेंट है। नहीं तो बस वो पागलों की तरह लग गए थे बस। क्योंकि देखो, कमाल की बात मैं बताऊँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको, ये जो 26 तारीख का जो इनका एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई पुलिस के ऑफिसर्स और हमारी जो एक्शन कमेटी है जो 40 लोग हैं, अरे सभी के साइन क्यों करा रहे आप? इनको पता था कि उस दिन झगड़ा करवाना है, लाठीचार्ज भी होगा, आंसू गैस छोड़े जाएंगे, लोगों के सिर भी फूटेंगे, एक आधी कैजुअलिटी भी हो सकती है, व्हीकल भी तोड़े जाएंगे, ट्रैक्टर भी टूटेंगे, बसें भी टूटेंगी, क्योंकि इन्होंने तो करवाना था काम। क्या लगता था इनको? हो सकता है सिविल ड्रेस में पुलिस वाले लोग भी हों, लेकिन सभी का ही पता उनको कि जो कुछ हुआ अखबार में है, अखबार की सुर्खियों में पढ़े, हमें बड़ा अचंभव हुआ पड़ गई है कि भाई सभी के खिलाफ जो है FIR लॉज हो गई है। क्यों? आपराधिक मामले दर्ज हो गए उनके खिलाफ। क्यों? उन्होंने वो एग्रीमेंट में साइन किए हुए हैं। उन्हें साइन कराए इसलिए थे कि सभी के सभी को इसमें फंसा ले, और ताकि वो आंदोलन को लीड ना करके अपनी सुरक्षा में ये जो झूठी साची जो मुकदमे जो दर्ज होंगे, जो तारीखें लगेंगी, इसमें उलझ जाएँ। लेकिन हमारे जो किसान हैं, जो मेरे टिकैत भाई है, चाहे हमारे दर्शन सिंह जी हैं, चाहे कोई भी हैं, वो इतने निर्भीक हैं, इतने निडर हैं, इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, उनके लिए ये बात आड़े नहीं आएंगी, इससे बिल्कुल बाहर निकलेंगे वे। और देखिए, इस सच्चाई को आखिरी में ये 2 लाइनों से बताना चाहता हूँ कि अन्याय को न्याय के सामने से, अंधेरे को उजाले के सामने से हटना पड़ेगा। पर्वत कितना भी विशाल का क्यों ना हो, नदी के बहाव से कटना पड़ेगा। जो कभी बच गया था तलवार से, उसे फूलों से कटना पड़ेगा। तो ये पब्लिक की एक आवाज़ है, भगवान की आवाज़ है, इसको सरकार छोटे मोटे हथकंडों से दबा नहीं सकती। बिल्कुल जी, सही है, क्योंकि समा उस हिसाब का साढ़े कोले सीगा। तो पर गल ही अभी जे यार इक्के च रहांगे, जुड़ के रहांगे, तो बहुत कुछ हासिल कर लांगे। असी पंजाब चों इत्थों तक तां ही पहुँच गए क्योंकि असी जिवें पहलां अकाली, कांग्रेसी, झाड़ू वाले इन्हां तो ये छड्ड के ना असी इकट्ठे हो गए सी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਕੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਂਡੇ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।